थोड़ा पीछे पीछे जाओ, उधर जाओ। इधर पीछे जा, पीछे वहाँ से आएगा, घूम के घूमते हुए आएगा। मैं पीछे से पीछे पीछे से पीछे पीछे से पीछे से पीछे से थोड़ा डिस्टेंस रखना। हाँ, थोड़ा बता दूंगा। देख के चलना, इधर उधर पैर मत डाल देना। चलो चलो फास्ट 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 चलो, फास्ट चलो।
Where the mind is without fear and the head is held high, where Ved Prakash, Chairman of University Grants Commission, our Honorable Vice Chancellor Mr. Najib Jung, out of his busy schedule to be a part of our program today. Professor Ved Prakash, currently serving as Chairman UGC, has held prestigious positions in a number of premier organizations dealing with higher education and school education. He has also been appointed as the Vice Chancellor, NUPA, New Delhi. Professor Ved Prakash has been a recipient of the US Fulbright Postdoctoral Fellowship and has also served as a visiting faculty at the Humanities Research Group, University of Windsor, Canada, and school education. If we were to teach real peace in this world, and if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with children. So let not the wings be clipped that yearn to soar up. Let us not stop dreaming. With these thought-provoking words, I welcome you all heartily on the occasion of the Republic Day celebration. In India, Republic Day honors the date on which the Constitution of India came into force, replacing the Government of India Act 1935 as the governing document of India on 26 January 1950. The date was chosen to honor the declaration of the independence of 1930. Let us commence a journey of peace, harmony and progress in our country. We must dedicate ourselves to the peaceful but sure realization of the dream that had inspired the father of our nation and the other captains and soldiers of our freedom struggle. The dream of establishing a classless, cooperative, free and happy society in India. We must remember that this is more a dream. I am. क्या लोग थे जो राहे वफा से गुजर गए, जी चाहता है नक्शे कदम चूमते चलें. Jamia Millia Islamia has played a significant role in the freedom struggle of India. Secularist to the core, our institute has had a broad vision and has never allowed its sense of nationalism fall into narrow grooves. It has set them in contact with the East and the West, the ancient and the modern, the Muslims and the non-Muslim could find a happy meeting ground. Jamia Millia Islamia was founded in Aligarh in 1920 during the Khilafat and non-cooperation movement in response to Gandhiji's call to boycott all government-supported institutions. Among those who enthusiastically responded to this call were Sheikhul Hind Maulana Mahmood Hassan, Hakim Ajmal Khan, Dr. Mukhtar Ahmad Ansari, these eminent personalities who worked tirelessly for the national integration had the aim of providing effective leadership in a world of change. The Jamia moved from Aligarh to Delhi in 1925. Since then, it has been continuously growing, always refurbishing its methods and branching out from time to time to meet its new needs. True to the ideals of its founders, the Jamia over the years has tried to develop individual initiatives and spontaneity among its students and has attempted to integrate the physical and mental development. When we take a look back at our constitution, we realize that it is flexible and is strong enough to hold the country together, both in peacetime and in wartime. Indeed, if we may say so, if things go wrong under the new constitution, the reason will not be that we had a bad constitution. What we will have to say is that man is wild. Keeping in mind the present scenario of our society, it is imperative that people who have a vision for the future of our country as a blooming, rich garden of flowers must with conviction spread the message of respecting the individuality of man. To Zakir Hussain, one of the founders of our institute, and education, the child who has to grow into the citizen through his intelligence and willing participation in education. With these profound words, may I now request the Honorable Vice Chancellor, Mr. Najib Jung, to come in of UGC. I would also request our Honorable Pro Vice Chancellor, Professor S.M. Rashid, to present a portrait of Professor Ved Prakash to him.
Awards from Jamia Nursery School with a lively song before you. May I now request students from Jamia Senior Secondary School to present a song before you. Hindu
patriotic song has set the tone for the day. I now request the Honorable Chief Guest Professor Vice Ved Prakash to share a few thoughts with us and enlighten us. मेरे बड़े भाई परम आदरणीय प्रोफेसर नजीब जंग जी, प्रोफेसर हबीब प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, प्रोफेसर राशिद, साजिद, सभी मेंबरान फैकल्टी की तरफ से, स्कूल के अध्यापक, अतिथि गण, अभिभावक वर्ग और मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आज आप सभी लोगों के बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये विश्वविद्यालय, ये स्कूल मेरे लिए बहुत सम्मानित स्थान रखता है। मुझे विशेष लगाव है जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ में, पहले से ही लगाव मुझे रहा है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे बड़े भाई के आशीर्वाद की वजह से रेगुलर चेयरमैन बनने के बाद मेरा ये पहला फंक्शन है कि मैं आप लोगों के बीच आज उपस्थित हुआ हूं। बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारा 64वां गणतंत्र दिवस है। हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, और आज़ादी मिलने के बाद इस राष्ट्र को किस तरीके से बेहतर तरीके से चला सकें, उसके लिए हमें संविधान की आवश्यकता थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसको ड्राफ्ट कमेटी कहा जाता है। उसने ड्राफ्ट दिया और 1950 26 जनवरी और 1950 में हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले भारतवर्ष के राष्ट्रपति बने। ये दिन हम इसलिए मनाते हैं कि हम अपने राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करें। संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, उसमें समानता का अधिकार है, उसमें और बहुत सारे अधिकार हैं। मैं लंबा भाषण नहीं देना चाहूँगा, लेकिन उन अधिकारों को के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। राष्ट्र के प्रति हमारी क्या निष्ठा होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या दायित्व बनता है। आज के दिन हम सब लोगों को सर्वप्रथम तो उनको याद करना चाहिए जिन महापुरुषों ने बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलवाई। आज़ादी का मतलब बहुत जिम्मेदारियों का मतलब होता है। आज़ादी का मतलब है फ्रीडम ऑफ माइंड, फ्रीडम ऑफ हार्ट। और ऐसा देश वो हमें देकर चले गए कि इस तरीके का मुल्क पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता, जहां अनेक धर्मों के व्यक्ति साथ साथ रहते हैं, अनेक धर्मों के व्यक्ति साथ साथ मिलकर काम करते हैं। स्कूल और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ऐसी संस्थाएं हैं जहां हमें राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करने के लिए बच्चे हम तैयार करते हैं। और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उन बच्चों को ये सिखाएं कि किस तरीके से हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ही ऐसे जगह हैं जहाँ हम पुस्तकों से तो ज्ञान अर्जित करते ही हैं, लेकिन पुस्तकों से अधिक ज्ञान अर्जित करने का हमें मौका मिलता है when we interact with each other। जब हम अलग अलग परिवेश से आने वाले भाइयों और बहनों के बीच में रहते हैं, उनसे जो सीखने को मिलता है वो ज्ञान पुस्तकों के ज्ञान से कहीं गुना ज़्यादा होता है। और
जिन लोगों ने मेरा तो ये मानना है कि अगर आप हर आदमी अमर होना चाहता है, लेकिन अमर वही व्यक्ति हो सकता है जो सिर्फ अपनी चिंता न करके समाज की चिंता करे। समाज के लिए जिस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे महापुरुषों ने एस्टेब्लिश की हैं और उनको हम हर रोज़ याद करते हैं कि उन्हीं की बदौलत हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये कहा जाता है कि अगर अमर होना है तो वी मस्ट गेट एसोसिएटेड विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड वी मस्ट कंट्रीब्यूट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र सशक्तिकरण का साधन है। अगर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करोड़ों की अरबों की संपत्ति छोड़कर चले जाएं, उससे सशक्तिकरण नहीं होता। सशक्तिकरण होता है शिक्षा के माध्यम से। इसका हमें बहुत अधिक से अधिक मात्रा में प्रचार और प्रसार करना चाहिए। और सशक्तिकरण होता है जब हम एक दूसरे को ठीक तरीके से समझें, अपने कर्तव्य को समझें, अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक तरीके से करें, वो सशक्तिकरण होता है। मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा, विशेष रूप से जो अध्यापक वर्ग है, कि यहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनको पुस्तकी ज्ञान तो देना ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा उनको ये भी बताएं कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ। मेहनत अत्यंत आवश्यक है। बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि अगर उनको बहुत लंबी दूरी तय करनी है तो ईमानदारी एक बहुत इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है जिसको हमें कॉन्शियसली कल्टीवेट करना चाहिए अपने बच्चों के बीच में। हमें अपने बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि उनको किस तरीके से हाउ दे शुड ट्रीट एवरी इंडिविजुअल विद डिग्निटी। हमें बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि अलग अलग फेथ के लोगों का सम्मान किस तरीके से करना चाहिए। और हमें उन बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए, जितने धर्म हमारे देश के अंदर हैं, हर धर्म के अंदर अनेकों अच्छाइयाँ छुपी हुई हैं। उन अच्छाइयों को उजागर करके उनको बताना चाहिए, जिससे उनमें आपस में सौहार्दपूर्ण एक वातावरण पैदा हो सके। और इस विश्वविद्यालय में और किसी भी विश्वविद्यालय में हर परिवेश से बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे परिवारों से, एफ्लुएंट फैमिलीज से आते हैं। परिवार तो सभी अच्छे होते हैं। कुछ गरीब घरों से बच्चे आते हैं। किसी के पास भाषा की बहुत ज़बरदस्त ताकत होती है, किसी के पास भाषा का बहुत अभाव होता है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा, विशेष रूप से अध्यापक वर्ग से, कि वी मस्ट गिव देम नेसेसरी लैंग्वेज स्किल्स, जिससे वो अपने आप को असहाय ना समझें, जिससे अपने आप को व्यक्त करने में उनको कभी दिक्कत नहीं हो। ये अत्यंत आवश्यक है। और इन बच्चों को इनके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की आवश्यकता है। और मैं अपना लंबा भाषण नहीं करके, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कहना चाहता हूँ, तो आई एम गोइंग स्ट्रेट। लेट मी से कि मैं इबादत के बारे में एक आपसे शेयर अर्ज करना चाहूँगा कि इबादत क्या होता है। और वो बहुत लंबा है, लेकिन मैं उसको बहुत छोटा सा उसका एक अंश जो है वो आपके सामने रखना चाहूँगा कि इबादत के लिए काफ़ी नहीं तस्बीह घुमा देना, इबादत के लिए काफ़ी नहीं तस्बीह घुमा देना, किसी मंदिर या मस्जिद में जाकर सर झुका देना। इबादत है किसी भूखे को 2 रोटी खिला देना, इबादत है किसी नंगे को 2 कपड़े दिला देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना, इबादत है किसी निरक्षर को साक्षर कर देना। This is what we need to teach our children so that they can become good citizens। और मेरे बड़े भाई ने मुझे एक पुस्तक दी, उस पुस्तक का नाम है द एम्परर्स राइटिंग्स। ड्रक कॉलियर की किताब है वो। मैं
मैं कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट अपने भाई को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिससे उसकी बहुत सारी कॉपीज लाइब्रेरी के अंदर हो और बच्चों के जहन में अगर वो बात अंग्रेजी में फिट नहीं बैठे तो अध्यापकों से मैं गुजारिश करूंगा कि अध्यापक बच्चों को बताएं। और उसमें मैं एक ही चीज छोटी सी कोट करना चाहता हूं। उसमें लेटर्स हैं, अकबर ने लेटर लिखे हैं जहांगीर को, और इतने अहम पत्र हैं वो, और उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है। उसका एक छोटा सा अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और उसमें ये कहा है अकबर ने जहांगीर को, और उसको मैं अपनी भाषा में, मैं कोट नहीं कर रहा हूं, अपनी भाषा में जैसे मैंने उसको इंटरनलाइज किया है उस तरीके से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अकबर ने लिखा है कि इस मुल्क में ज्ञान बहुत कम लोगों के पास है और बहुत कम लोग उस ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करते हैं, और ज्ञान से ऊपर उठकर विजडम एक्वायर करने की जो क्षमता है वो और भी थोड़े लोगों के बीच में है। और बहुत थोड़े लोग नॉलेज से ग्रेजुएट करके अपने आप को विजडम के लेवल पर लेके जाते हैं, और उस विजडम पर जाकर अधिकांश लोग रुक जाते हैं। जो भी छोटा वर्ग है जो वहां तक पहुंचता है वो वहां खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है कि नॉलेज और विजडम के बियॉन्ड भी कुछ चीज है। माय डियर सन, आई वांट टू टेल यू that there is also something like truth। और अकबर कहते हैं कि जहांगीर, ट्रुथ जो है, ट्रुथ एक हीरे की तरह से है जो देखने में एक लगता है लेकिन उसके मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। और जहांगीर, मैं आपको ये भी आगाह करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि you must emulate those who are in search of truth with humility। I want you to emulate those, I'm repeating, I want you to emulate those who are in search of truth with humility, but be wary of those who claim to have found the truth, because truth is the ultimate position of the Allah Ta'ala, and those who claim that they have found the truth, you should be very, very wary of those people। उस पुस्तक के अंदर इतना ज्ञान छिपा हुआ है कि अगर वो पुस्तक आप पढ़ें तो आपके चरित्र निर्माण में, आपकी पदोन्नति के लिए आपको और कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप और चीजें नहीं पढ़ें, और भी चीजें पढ़ें आप। और अगर बच्चों के अभिभावक यहां पर हैं तो मैं अपनी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए आपको ये कहना चाहूंगा कि कपड़ों के ऊपर कम खर्च कर लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पैदल चलकर स्कूल या विश्वविद्यालय में आए, बाकी चीजों पे खर्च ना करें, पुस्तकों के ऊपर खर्च करें। अगर रियल मायने में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है तो उनके लिए धन और दौलत और प्रॉपर्टी छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। उनको अच्छी शिक्षा देकर अच्छा नागरिक बनाने की आवश्यकता है, और उस पर जितना भी इन्वेस्टमेंट आप कर सके उतना इन्वेस्टमेंट आप करें, तभी हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और ये ऐसी चीजें आज के दिन जब हम अपने गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हम लोगों को ये याद करनी चाहिए। और अगर एक चीज और मैं अध्यापक वर्ग से कहना चाहूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा विश्वविद्यालय या प्रिंसिपल साहब, हमारा स्कूल, जिसमें अधिकांशतः बच्चे एक विशेष वर्ग से आ रहे हैं, हमारी संस्था बाकी मेन स्ट्रीम संस्थाओं से बेहतर होनी चाहिए। और हम राष्ट्र को हमें एक मॉडल पेश करना चाहिए कि हम किस तरीके की शिक्षा अपने प्रांगण में देते हैं, किस तरीके से हर एक वर्ग के बच्चों की
रख रखाव हम अच्छी तरीके से करते हैं. I think our institutions must be better than the mainstream institutions. This is what should be our goal, and we should work very hard to realize that goal. आज भारतवर्ष के 64वें गणतंत्र दिवस पर मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं. आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने का. मैं अपने बड़े भाई नजीब जंग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बुलाया और ये मौका दिया आप लोगों से बात करने का. I wish everyone present here all the very best, and may God bless all of you, and we contribute whatever strength we have with humility to build this nation as a great nation, to take it forward and to overcome the problems that we have been facing. We are still living in a highly stratified society, which is neither good from the economic perspective nor from the political perspective. I think हम सब लोगों को, हम एक शक्तिशाली देश तभी बन सकते हैं जब हम साथ साथ बढ़ें और साथ साथ आगे चलें. इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को आज गणतंत्र दिवस पर बधाई देना चाहता हूँ. शुक्रिया. थैंक यू. Thank you so much, sir. May I now request our Honorable Vice Chancellor, Mr. Najeeb Jung, to come and say a few words. My friend, colleague, Chairman of the UGC, Professor Ved Prakash, all my friends, colleagues of Jamia Millia Islamia, parents who have come here this morning, and all of you students. I was not expected to speak this morning at all, and if anybody has a copy of the program with him, he will notice that my name is not as a speaker today. But seeing so many students, I couldn't restrain myself from making a request that let me have this opportunity to talk to you and to parents whom I don't normally get to speak with. बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि 5 सेकंड के लिए इस झंडे की तरफ आप देखें. किसी भी मुल्क को उसका झंडा कैसे मिलता है, और ये जब झंडा बना तो इसके रंग क्यों ये रंग हैं, ये भगवा रंग, ये हरा रंग, ये सफ़ेद रंग. आप जाएं तो देखें कि इस झंडे में पूरे हिंदुस्तान की एक तस्वीर है. It encapsulates the philosophy, the deep theological content of Hinduism. It also contains the rich contribution of Islam. It indicates the message of peace which this nation is supposed to carry with it. तो कोई भी मुल्क को आज़ादी कैसे मिलती है? 1947 आपको इस उम्र में अंदाज नहीं हो सकता, क्योंकि 6-7 हज़ार साल हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था. ये नहीं था कि 1000 AD में मुसलमान आ गए तो हिंदुस्तान पे राज कर लिया और हमारी आज़ादी चली गई, या अंग्रेज़ आ गए तो आज़ादी चली गई. उससे पहले भी जब राजे और महाराजे रहते थे तो हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था किसी और. पहली बार 1947 में आपको वो फ्रीडम मिली कि आप बोल सकते हैं, आप अपना मज़हब की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, किसी क्लब में जा सकते हैं, किसी सिनेमा हॉल में जा सकते हैं. दिल्ली के जिमखाना क्लब में 1920 में लिखते थे कि कुत्ते और हिंदुस्तानी यहाँ अलाउड नहीं. ये 1920 की बात है. So you must reflect. Just think a little bit on what it takes to be free. The meaning of the word to be free. Because there are 50% of humanity. इस वक्त दुनिया में कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो आज़ाद नहीं. सोवियत रशिया 1991 में एक्चुअली आज़ाद हुआ, जब विचारों की उनको फ्रीडम मिली.
दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क चीन, क्या वहाँ के लोग आज़ाद हैं? आप ज़रा सोचिए। कोरिया के बारे में सोचिए, लैटिन अमेरिका की कई मुल्कों के बारे में सोचिए। सो प्लीज़ रिफ्लेक्ट एंड बी ग्रेटफुल। यू नो, यू रीड अबाउट जवाहरलाल नेहरू के हिंदुस्तान के 17 साल प्रधानमंत्री रहे। आप लोग बहुत चाहते थे, बच्चे चाचा नेहरू कहते थे। जब जवाहरलाल विलायत से आए और वो हिंदुस्तान में प्रैक्टिस कर सकते थे, वो ICS का इम्तहान ले सकते थे, लेकिन 6 महीने में विलायत से आने के बाद वो हिंदुस्तान के देहातों में पहुंच चुके थे और 8 साल अंग्रेज जेल में रहे। So a young man who comes back from England, who could have built a future, chose to be in jail. His wife became sick. Kamala Nehru died of an illness, a neglected person. His father died of bronchitis and asthma, a very sick man. But the son was away fighting for the freedom of this country. And like Jawaharlal, there were many others. There were hundreds and hundreds of others who have died in British jails. For you to see this day, so just reflect. Number 2, ये अभी आपने इकबाल का वो गाना सुना, सारे जहाँ से अच्छा, वहाँ ये भी है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। And I really wonder how many of you think of it. क्योंकि ये जो आपकी नस्ल है, जो नया जनरेशन है, मेरा अपना ख्याल ये है कि सबसे पहले वो अपने फ़िरक़े के बारे में सोच रहे हैं, अपनी कास्ट के बारे में सोच रहे हैं, अपने रीजन के बारे में सोच रहे हैं। This school would have failed in its purpose if at the time you leave the school, you are not able to rise above your religion, you are not able to rise above your caste, and you are not able to rise above the region from which you belong. Because only then will you learn to think as an Indian. Please be very proud of whatever belief you have or non-belief if you have. It does not matter. But in the ultimate analysis, please remember what it is to be a citizen of free India. We will not be, all the people on this stage here will not be alive in 25, 30 years. Most of your teachers will not be alive in 15, 20 years or 30 years, whatever their ages are. The population of India will be 150 crores. And it was you people who will be here, who will be in charge of the water supplies, who will be in charge of the administration, who will be the engineers and the doctors. Are you mentally prepared to lead India? और बार बार स्कूल में भी आपको बताया जाएगा, आपके वालिदैन भी बताए जाएंगे कि भाई पढ़ लीजिए, नौकरी मिल जाएगी। मैं आपसे इससे मुख्तलिफ बात करना चाहता हूँ। मेरे नज़रिए में नौकरी ज़रूरी नहीं है। मेरे नज़रिए में ये ज़रूरी नहीं है कि आप IAS करें या इंजीनियर बने या डॉक्टर बन जाएं या बहुत अच्छे ओहदे पर पहुँच जाएं। मेरा विश्वास है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने को दिमागी तौर पर आज़ाद करना पड़ेगा। यू हैव टू बी फ्री इन माइंड। If you are free in mind, everything will fall into place. Because what is your right will come to you. आपका अधिकार कोई छीन नहीं सकता आपसे। और ये अल्लाह ने लिख दिया है आपकी किस्मत में कि ये आपको इतना मिलना है। लेकिन खुदा के वास्ते अपने दिमाग को आज़ाद कर लीजिए, अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोल लीजिए। और जब आप खिड़की खोलेंगे तो ऐसे ख्यालात आएंगे, ऐसी रोशनी दिमाग के अंदर आएगी कि आपकी फीलिंग अलग हो जाएगी। हमारे यहाँ हिंदू फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है कुंडलिनी का, कि इंसान की कुंडलिनी जब जागृत होती है तो कायनात की नॉलेज उसके अंदर आ जाती है। तो कुंडलिनी तो एक मेटाफोरिकल चीज़ है, लेकिन जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, इनकी सबकी कुंडलिनी जागृत है। इसीलिए
उनमें क्षमता है कि वो साधारण आदमी से ज़्यादा सोच सकते हैं और साधारण आदमी से ज़्यादा वो उनकी एक फॉलोइंग हो सकती है। आप सबके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा इस पे तवज्जो दें कि पढ़ाई के अलावा आपका दिल और दिमाग कैसे खुलेगा, आपका दिल और दिमाग आज़ाद कैसे होगा। सिर्फ मुल्क आज़ाद तो हो गया, लेकिन आपका दिल और दिमाग कहाँ तक आज़ाद हुआ है। वेद प्रकाश जी ने बहुत अच्छा हम लोगों को लेक्चर दिया, तकरीर दी। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता था कि झंडे की तरफ देख लीजिए। इस उम्र में भी अगर मैं नेशनल एंथम सुनता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि नेशनल एंथम में कोई एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के दिल को टच करती है। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को ये फीलिंग होती है कि नहीं होती। और सोचिएगा इसमें कि जन गण मन कभी अंदर गाइएगा और देखिएगा कि उसमें क्या फीलिंग है राष्ट्रभक्ति की। हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे, सेंट कोलंबस स्कूल में, आज मैं सोचता हूँ स्कूल ने मुझे क्या दिया। तो पढ़ाई वढ़ाई तो सब स्कूलों में होती है, आपके यहाँ भी होती है, हमारे यहाँ भी होती थी, लेकिन जब हमने स्कूल को छोड़ा तो हम में जितने भी हम लोग उस जमाने में 40 या 50 बच्चे क्लास में होते थे, none of us were aware of a strong religious identity. We left the school as citizens of India, we left the school as old Columbans. I don't think that that is happening today, and that worries me. So think of what we have said. I wish you all the really very, very best, because you are the futures of this country. And I really believe that in 30 years later, 40 years later, if we are to surpass these great, so-called great nations, it depends on the sense of pride you will have. You go to America, you listen to the speeches of the President of America. They will always begin the speech and end the speech with "God bless America." When the national anthem is sung in America, you will see copious quantities of tears being spilled, because that is the value of the anthem. It's a country of immigrants. It's a country that they won independence with great difficulty. They had come from Europe, they had come from Africa, from all over to form that great nation. We have not made those kind of sacrifices. So reflect how lucky you are. Reflect on how lucky you are to be in a good school with a terrific heritage, with a legacy, and then think that how can we improve this school? How can we, because once you start improving, then improvement also is a habit. If you do well in class, doing well in class becomes a habit. If you are a disciplined person, then discipline becomes a habit. If you read, for instance, I go often to your library. Sometimes I've been to your library here. I see it's a disused facility, and it makes me very, very, very sad. I remember as a child, my father used to maybe 3 or 4 times a week pick me from school at 1:30 and leave me at the British Council library till 5 o'clock. He never told me what to read. But if a child at between 10, 12, 13, 14 goes to a library for 3 hours, 4 hours, what does he do? He has to read. He will pick up books and start reading. So use whatever little facilities. You do not have to be wealthy to do well. You do not have to be rich. Richness comes from within. You will see what is your due will come in life. If it is your due to be wealthy, you will become wealthy one day. And if it is your due to be wealthy in heart and mind, then that will also come. मैं ख़त्म करने से पहले एक आपको किस्सा सुनाना चाहता हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का, कि रिचनेस कहाँ से आती है। हज़रत की पॉपुलैरिटी हिंदुस्तान में बहुत बढ़ रही थी। 6 सुल्तान उनके सामने से निकल गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी का ज़माना था, और आप सबको मालूम है कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत बड़े सुल्तान थे। दक्खन तक उनके कॉन्क्वेस्ट हो रहे थे, और हज़रत के यहाँ पर दरगाह, जहाँ पर अब दरगाह है, वहाँ वो रहते थे। तो लोग बहुत आते थे, बड़ी बड़ी तादाद में आते थे। कव्वाली होती थी, शाम को महफिल होती थी, समा होता था।
तो लोगों ने आके सुल्तान के कान भरे और कहा कि साहब ऐसा है कि ये बड़े पॉपुलर हो रहे हैं और अगर इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस हो गए, किसी दिन इनका अगर दिमाग घूम गया तो ये तो आपको भी खतरा हो जाएगा। तो आप ज़रा निज़ामुद्दीन को टेम करिए, इसको ज़रा दुरुस्त करिए, नहीं तो इसमें ख़तरा है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत मैच्योर सुल्तान थे, उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं देखता हूँ। और एक दिन उन्होंने वक्त लिया और कहा कि मैं हज़रत से आके यहाँ पर हुजरे में मिलूँगा। तो वो आए, मगरिब का वक्त था, हज़रत नमाज़ पढ़ रहे थे। लोगों ने कहा सुल्तान से कि आप इंतज़ार करिए, नमाज़ पढ़ लें, फिर आपको बुलाएंगे। तो उनको बुलाया गया अंदर। तो सुल्तान ने कहा कि हज़रत मैंने सुना है कि सबको मालूम है कि आपकी क्या स्पिरिचुअल पावर्स हैं, कितने आप पहुँचे हुए हैं, कितने आलिम हैं, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि हो सकता है कि अगर आपके पॉलिटिकल एम्बिशंस हो गए तो मुझे ख़तरा हो जाएगा। तो हज़रत ने कहा अच्छा, तो तुम्हारा मुल्क मुझे और क्या दे सकता है। इट कम्स फ्रॉम नॉलेज। आई होप सम ऑफ यू विल clear your exams this year and join this big university. My good wishes are with you. My good wishes are with your parents who have struggled so hard to bring you to this stage. To the parents I will say that may God be with these children. You have sacrificed a great deal to bring them to this stage. I hope that your hopes will be fulfilled. I hope always that these children will be a pillar to this great country. Thank you very much. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we now have a prayer song by the students of our school. Thank you, friends. I now request our respected principal, Mr. Tariq Habib, to come and address the audience and deliver the vote of thanks. Honorable Professor Ved Prakash, respected Vice Chancellor, Co-Vice Chancellor, Registrar, guests, ladies and gentlemen.
It is indeed a matter of great pride and honor for us that we have Professor Ved Prakash amid us. Sir, we owe you heartfelt thanks for sparing time and making this auspicious occasion so special. We look forward to receiving your able guidance and generous support. We are aware of your philosophy of life that finds its full echo in an Urdu couplet, Hayat leke chalo, kainat leke chalo, chalo to sare zamane ko saath leke chalo. I would also like to extend my sincere thanks to our Honorable Vice Chancellor, Mr. Najib Jung, who with his versatility and tireless endeavors has made attempts to take Jamia beyond the existing frontiers. His efforts continue to inspire and motivate us. I also wish to express my gratitude to the Pro Vice Chancellor and Registrar of Jamia Millia Islamia for their sincere efforts to help Jamia schools reach greater heights. I would also like to thank esteemed guests, NCC officials, cadets, Horticulture Department, Building Department, Administration, and all those who made this function a grand success. Last but not least, I would like to thank all head of schools, teachers and students for their enormous cooperation in organization of this event. I thank you all very much once again. Thank you. Thank you so much, sir. I have a request for all of you. Since the band that played the national anthem at the time of flag hoisting was almost inaudible, I request all of you to stand up for the national anthem once again. As the function comes to a close, I would take this opportunity to share a few lines with you. अभिग्रानीय शब में कमी नहीं आई, न जाते दीदो दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो के वो मंजिल अभी नहीं आई. Thank you. Thank you. हाँ मैं साइड कर जाओ अब जाओ